A very good morning, dear students. Today we will start a new topic of chapter 4, stroking path. The path can be converted into different lines style. पाथ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट लाइन स्टाइल्स में. कैसे? यूजिंग वेरियस कलर्स, पैटर्न्स और पेंट टूल्स की हेल्प से. टू स्ट्रोक पाथ क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप, क्रिएट एंड सेलेक्ट अ पाथ. Second step, on the toolbox tool option window, from the tool options dialog box, under the path, click the stroke path button. The stroke path dialog appear as shown in figure. ठीक है, ये हमारा स्ट्रोक पाथ इस तरीके से हमारा फिगर शो हो जाएगा. स्ट्रोक पाथ डायलॉग बॉक्स. नेक्स्ट स्टेप, select the solid color or a pattern option to change the stroke line. Fourth step, from the line width drop down, click up and down arrow to change the width of the path. Fifth step, click the stroke with the paint tool option and select the required tool from the paint tool drop down list to use the paint tool. The result is shown in figure. यहाँ पे जो हमारा पाथ है उसकी विड्थ को हमने चेंज करके क्या कर दिया, उस पाथ को सिलेक्ट किया और हमारा कुछ इस तरीके से आउटपुट शो हो गया. नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग ब्रशेस. हाउ टू यूज ब्रशेस. First, the different brushes are available in GIMP tools. GIMP can be used while drawing object or editing images using paint tool. बहुत डिफरेंट टाइप के ब्रशेस हमें GIMP में मिलेंगे जब हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट या एडिटिंग इमेजेस करेंगे. There are 14 paint tools such as, कितने पेंट टूल? 14 टूल्स हमें मिलते हैं पेंट टूल्स सच एज बकेट फिल, ग्रेडियंट, पेंसिल, पेंट ब्रश, इरेजर, एयर ब्रश, इंक, माई पेंट ब्रश, क्लोन, हील, पर्सपेक्टिव क्लोन, ब्लर, sharpen, smoke, dodge burn, and all paint tool except the ink tool use different brushes. To use brush, how to use brush? We will follow following steps. On the image window, click the window menu. Second step, point to the dockable dialog. Third step, click the brush option and the brush dialog box appears. On the image window, click tool menu and the tool menu appears. Next step, point to the paint tools. Then next step, select the required paint tool. For example, eraser. हमने paint tool से क्या select किया? Eraser. From the brush dialog, click the desired brush. Brush dialog box से हमने जो भी desired brush था वो हमने select कर लिया. For example, start shape brush we choose. Place the cursor pointer on the image. रखेंगे cursor. From place the mouse pointer on the image, click and hold the left mouse button. Left mouse button को hold करेंगे and drag it over the image. The brush effect is shown. अब इसमें क्या करा है हमने कि यहाँ पे जो पिक्चर शो अप हो रही है यहाँ से हमने ड्रैग करना स्टार्ट किया और हमारा स्टार पेंट ब्रश था वो स्टार की शेप में इसको शेप दे रहा है. टू एडिट ब्रशेस, अगर हम ब्रशेस को एडिट करना है तो कैसे करेंगे? राइट क्लिक द ब्रश. A shortcut menu appears as shown in figure. Select the edit brush option. Edit brush option dialog box appears. Edit brush and click hold left mouse button. Drag the pointer in the required field. हम उसको edit भी कर सकते हैं. Time for action. Peter wants to write his name using paper brush and GIMP. Help him perform the various tasks. GIMP में बहुत सारे ब्रशेस होते हैं. एक ब्रश का यूज़ करना हम इस एक्टिविटी में बताएंगे. टू यूज़ द ब्रश. ऑन द इमेज विंडो, क्लिक द विंडो मेन्यू. पॉइंट टू द डॉक्यूमेंट डायलॉग्स, क्लिक द ब्रशेस ऑप्शन. ब्रशेस ऑप्शन में जाके ब्रशेस डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. ऑन द इमेज विंडो, क्लिक द टूल मेन्यू एंड द टूल मेन्यू अपीयर्स. वहाँ से हम पेंट टूल्स में जाएंगे, पेंट ब्रश टूल ओपन करेंगे. देन फ्रॉम द ब्रश डायलॉग बॉक्स, क्लिक पेपर ब्रश. पेपर ब्रश से सिलेक्ट कर लेंगे. स्क्रॉल डाउन इफ़ नीडेड, अगर उसको नीचे मिल रहा है तो वो उसको नीचे स्क्रॉल करके वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेंगे. प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द इमेज. इमेज पर अपना माउस पॉइंटर प्लेस करेंगे. क्लिक एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट ओवर द इमेज. तो उसके बाद लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके इमेज के ऊपर ड्रैग करेंगे. जैसा भी हमें करना है उस तरीके से हम कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे पीटर लिखना था तो पीटर ने अपना नेम लिख दिया विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट माउस बटन होल्ड. द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विद लेयर्स. लेयर आर लाइक अ सीट ऑन अ इमेज. लेयर क्या है? एक तरीके की सीट ऑन अ इमेज है. यू कैन वर्क वन पार्ट ऑफ एन इमेज विदाउट अफेक्टिंग द अदर पार्ट ऑफ हेल्प विद द हेल्प ऑफ लेयर. हम क्या कर सकते हैं? एक वन पार्ट ऑफ इमेज को वर्क कर सकते हैं दूसरी
पार्ट को इफेक्ट किए बिना या दूसरे लेयर को इफेक्ट किए बिना। कंसीडर यू वांट टू एडिट द इमेज ऑफ ए फ्लावर, यू वांट टू वर्क ऑन अ पेटल्स एंड स्टेम ऑफ ए फ्लावर। कि कंसीडर हम क्या कर सकते हैं, एडिट इमेज कर रहे हैं किसकी, फ्लावर की, और हम ये भी करना चाहते हैं कि पेटल्स एंड स्टेम ऑफ फ्लावर को भी एडिट करें। फॉर दिस यू नीड टू क्रिएट द 2 लेयर स्टेम्स एंड पेटल एज शोन इन फिगर। इसमें हमें क्या करना होगा, स्टेम और पेटल की 2 लेयर्स को क्रिएट करना होगा। यू कैन मैनेज दिस लेयर विद द लेयर डायलॉग बॉक्स। और इन दोनों लेयर को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, लेयर डायलॉग बॉक्स से। क्रिएटिंग अ लेयर, यू कैन क्रिएट अ लेयर एज मैनी एज यू रिक्वायर्ड इन GIMP। हम बहुत सारी लेयर क्रिएट कर सकते हैं GIMP में। यू नीड अ गिव नेम टू ईच लेयर क्रिएटेड, लेकिन हमें क्या करना होगा, हर लेयर को नेम देना पड़ेगा। टू क्रिएट अ न्यू, हाउ टू क्रिएट अ न्यू लेयर, वी विल फॉलो दिस स्टेप। ऑन द लेयर डायलॉग बॉक्स लेफ्ट बॉटम कॉर्नर click the create a new layer icon. The new layer dialog box appear as shown in figure. In the layer name box enter the desired name or example petals. In the width and height box the enter desired height and width of the layer. Under the fill with the section select the desired option, click OK. A new layer petal is created. इस तरीके से हमारी एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग लेयर। हाउ टू ऑर्गेनाइजिंग लेयर, यू कैन ऑर्गेनाइज लेयर बाय मूविंग देम अप एंड डाउन इन द लेयर स्टैक। कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज लेयर बाय मूविंग अप एंड डाउन इन द लेयर स्टैक। यू कैन ऑल्सो डू सो बाय क्रिएटिंग अ ग्रुप फोल्डर फॉर अरेंजिंग अ लेयर ऑफ सिमिलर नेचर और डिलीटिंग सम लेयर। हम और कैसे कर सकते हैं, लेयर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर तो हम ग्रुप ऑफ फोल्डर फॉर अरेंजिंग लेयर फॉर सिमिलर नेचर या डिलीटिंग सब लेयर। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज को लेयर ऑर्गेनाइजिंग लेयर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज मूविंग लेयर। हाउ टू मूव अ लेयर, ऑन द लेयर डायलॉग बॉक्स फ्रॉम द बॉटम पेन क्लिक द अप एंड डाउन एरो टू मूव द लेयर्स। इन फिगर 4.4 द सन इज फ्रंट ऑफ द माउंटेन सो दैट द सन लेयर इज above द माउंटेन लेयर। द सन लेयर है वो इस समय कहाँ है, above द माउंटेन लेयर। टू शिफ्ट द सन बिहाइंड द माउंटेन, लास्ट इमेज में क्या था, सन फ्रंट में था। टू शिफ्ट द सन बिहाइंड द माउंटेन select the sun layer and click down arrow button. The sun shift behind the mountain. तो सन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अगर डाउन एरो क्लिक कर देंगे तो सन हमारा शिफ्ट बिहाइंड द माउंटेन, माउंटेन के पीछे शिफ्ट हो जाएगा। एंड सन लेयर गोज बिलो द माउंटेन लेयर एज शोन इन फिगर। क्रिएट अ लेयर ग्रुप इज द नेक्स्ट टॉपिक। हाउ टू क्रिएट अ लेयर ग्रुप, ऑन द लेयर डायलॉग फ्रॉम द बॉटम पेन क्लिक द create a new layer group icon. The layer group folder as gets created in the layer stack. Drag the layer to place them in a folder. To rename the folder, double click it. How to deleting a layer, on the layer dialog box select the required layer. Layer dialog box में जाकर required layer को क्या करेंगे, select करेंगे। From the bottom pane click the delete this layer icon पर क्लिक कर देंगे। Adding text, how to add text in the GIMP tools. You can add text to the images. A separate layer is added for the text in a layer dialog. You can change the font style, color, size of the text to make it more attractive. हम कह सकते हैं फॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज, टेक्स्ट सब कुछ चेंज कर सकते हैं, इससे वो हमारा क्या लुक मोर अट्रैक्टिव। द टेक्स्ट बॉक्स कैन इन GIMP can be moved around using handles of the box as shown in figure. Look like this, the text box handle GIMP, ठीक है। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं ऊपर हमारा फॉन्ट एंड कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। Now how to add text, first step, on the image window click the tool menu and the tool menu appears, ठीक है। and then click text option. text option में जाके हम क्या करेंगे, click the image, then image पे क्लिक करेंगे। then next step, to change the font, the tool box from the tool section click the text add icon. a drop down list appears as shown in figure 4.29। इस तरीके से हमारी पूरी लिस्ट शो अप हो जाएगी। अब यहाँ से जिस तरीके का हमें टेक्स्ट शो अप करना है
उस तरीके का हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉन्ट, ठीक है, ये बहुत सारे फॉन्ट्स जो आ गए हैं हमारे, हमें जिस तरीके के टेक्स्ट चाहिए उस तरीके का हम फॉन्ट क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। देन सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉन्ट एंड चेंज द फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज को भी चेंज कर देंगे। क्लिक द अप एंड डाउन एरो नेक्स्ट टू द साइज बॉक्स, साइज बॉक्स के आगे जाके हम क्या करें, अप एंड डाउन एरो से उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। एंटर द टेक्स्ट यू वांट टू ऐड योर इमेज, टू चेंज द फॉन्ट कलर क्लिक द कलर बॉक्स। नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्ट द डिजायर्ड कलर एंड क्लिक ओके। Click the text box on the image and enter the desired text. Now our new topic is how you masking. Now what is masking? You can create a new picture by combining 2 or more picture in GIMP. अगर हम 2 या 2 से अधिक पिक्चर्स को क्या कर दें, कंबाइन करके एक न्यू पिक्चर बनाने, तो उसको एक तरीके का क्या बोलेंगे, मास्किंग। ऑल यू हैव टू डू इज बाई अप्लाई लेयर मास्किंग। और ये होगा किस तरीके से, लेयर मास्किंग करके। लेयर मास्किंग क्या होता है, लेयर मास्किंग इज द प्रोसेस ऑफ मास्किंग और कवरिंग सम पार्ट ऑफ ए लेयर सो दैट यू आर एबल टू क्रिएट अ फाइनल इमेज। क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मास्किंग और कवरिंग सम पार्ट ऑफ ए लेयर, कि कुछ पार्ट ऑफ लेयर या कुछ पार्ट ऑफ पिक्चर हम दूसरी पिक्चर पे ऐड अप कर दें और एक फाइनल इमेज क्रिएट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंबाइन 2 इमेजेस टू बिलो टू शो आइलैंड इन द मिडल ऑफ द सी, वी कैन मास्क द एरिया एंड इन द इमेज ऑफ द आइलैंड टू क्रिएट दिस इफेक्ट। अब हम इस वाले में क्या करेंगे कि ये जो पिक्चर हमारी ये वाली शो अप हो रही है, इसमें हम जो आइलैंड शो हो रहा है वो इसमें शो